वाहिगुरु साहिब जियो सूही महला पहला पांडा अच्छा सोए जो तिस भागसी पांडा अत मलीन तोता अच्छा ना हुई सी पांडा अच्छा सोए जो तिस भावसी पांडा अत मलीन तोता अच्छा ना हुई सी गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी एक द्वारे तोए अच्छा हुए सी मैले अच्छे का विचार आप वर्ताए सी मत को जान जाए अगे पाए सी जे कर्म कमाए तेहा हुए सी अमृत हर का नाम आप वर्ताए सी चलिया पत सु जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या बेचारा ते लोग सुनाए सी नानक आपने हाल सब कुल तारसी मानस क्या बेचारा ते लोक सुनाए सी नानक आपने हाल सब कुल तारसी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगा जुगटा गुरुतागति के सुभायमान परम सम्मानयोग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन फतेह पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठ के दीवाना जी हाजिरी पर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साथ संगत जीओ सतगुरु जी की अपार कृपा हुई है जो संगत ने सुभाग्य कड़ियां मानने का समा प्राप्त होया है सारे ने बड़े प्यार अदब के नाल जो सतगुरु पातशाह जी ने अमृत में बाणी जो भाव उपदेश हुक्म दी बख्शिश देते हैं वो श्रवण कीते हैं अज के ਜਿਹੜੇ भाव वचन ने इस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सोही राग ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ये पहले पातशाह गुरु नानक साहिब जी ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ कुछ शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋ ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿਰਦਾ अच्छे तो भाव निर्मल पवित्र सतगुरु कृपा करने वही भांडा अच्छा है वो हृदय पवित्र है जो इस जेड़ा की इस तो भाव रब जी नू भाव सी पहा जावे जेड़ा भांडा रब नू पहा जावे रब नू पाउंदा है वही भांडा असल दे विच अच्छा है पवित्र है निर्मल है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ हर जी पिता हर जी यो प्रतपालक
रब जे ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਭਾਂਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ पर ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤਿਰਛੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਹੈ रब की सारियां दे उत्ते बख्शिशा कर रहे ने सारियां दे उत्ते बख्शिश करते ने पर जिन्हां दे भांडियां दे उत्ते जां तां कोई ना कोई प्रचिति आई हुई है छत आ गई है जां किसी दा किसी छत्ती चीज दे थल्ले आ गया वो भांडे खाली रहे जां जिन्हां दे भांडे मुद्दे पए सी वो भी खाली रह गए जां जिन्हां दे तिरछे सी वो भी खाली रह गए रब ने सारे दे उत्ते बख्शिश कीती है पर वो बख्शिश केड़ी है जेड़ी कि हुक्म रज़ाई चलना जिन्हां ने हुक्म रज़ा दे विच चलना सीख लिया वो रब ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ रब ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਤਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ रब ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ रब ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਭਾਂਡਾ ਉਹੀ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ रब ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗਾ ਸਜਣੇ ਭਾਂਡਾ ਅਰਥ ਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲੀਨ ਤੋਂ ਪਾਓ ਗੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਮਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਗ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ मैं करके साडा जिहड़ा हिरदा रूपी जिहड़ा भांडा है वो अग दा मलीन हो चुका है उसने धोता अच्छा ना हुई सी हुण मन कुछ नु धोण दे यतन करदा है अनेका तरीके की इत्थे जाके स्नान करके सोचदा है कि मेरा भांडा जिहड़ा है मेरा हिरदा जिहड़ा है पवित्र हो जाएगा पर सतगुर कृपा करदे इस तरीके दे नाल ये जिहड़ा हिरदा रूपी भांडा है वो साफ नहीं हो सकदा वो देखो जदों असीं जपजी साहिब दी पौड़ी पढ़दे हां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਅਰੇ ਭਰੀ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜੋੜ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਮਲੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ सोच करे दिनस और रात मन की मैल न तंते जा सोच तो पाओ सुचमता मनु को अनेक तरीके की सुचमता रखता है कोई बाहरी तौर पे जिवें कि कई बार साडे अंदर एक विचार भी बनी हुई है जदों असीं लंगर प्रसाद छकदे भी कहने कि हाथ सूचे करा दो वो हाथ धोते जा सकते हैं साफ किए जा सकते हैं पर पानी के नाल सुचे नहीं हो सकते सुचे कदों होणगे सुचे उदों होणगे जदों गुरु दी विचार लैके उन्हां मुताबिक ना हत्थां नाल गुरु दी कार कमावेगा
तां सुच्चे होए। हुण कई बार इस कहते सुच्चे मुंह पाठ करना है, सुच्चा मुंह की केड़ा होगा? मूंह दे नाल कुरली कर लेने दे नाल सुच्चा नहीं हो सकता। सुच्चा होवेगा जदों तू गुरु दी विचार लैके इस मुख दे नाल गुरु अनुसारी बोलेगा, मिठा बोलेगा, ते तेरा मुख भी पवित्र हो जाएगा। सतगुरु पातशाही ने बाहरी तौर ते साडा जिहड़ा कोई स्नान करने नाल अंदर सुचलता नहीं आ सकती, अंदर टिकाव नहीं आ सकता, अंदर जिहड़ी मलीन है, मलीन सोच है, गंदी मत है, उस नहीं हो सकती। जिवें सतगुरु पातशाही कहते हैं पाप करे पंचा के बसे। मनुख पंजा विकार के विच फस के अनेकां तरीकां दे पाप कमाउंदा है। तीरथ नहाए कह सब उतरे। मनुख कहना कि मैं तीर्थां ते स्नान कराया, हुण जिन्ने भी पाप कीते सारे दूर हो गए। सतगुरु कृपा करे इवें करके पाप कभी भी दूर नहीं हो सकते। तीरथ नहाए कह सब उतरे। हुण बहुर कमावे होए निसंग, जम कुर्बान खरे कालंक। मनुख निसंग होके झाका ला के होर ज्यादा विकार करता है। बस सतगुरु कृपा करते हैं तो अंदर होर ज्यादा जकड़िया गया, तेरी माड़ी सोच माड़े फुरने होर ज्यादा पैदा होंगे, उन्हां दे विच गुजर है। सतगुरु कृपा करते हैं बाहरी स्नान दे नाल अंदर दा जिहड़ा भांडा जिहड़ा हिरदा मलीन है, मत जिहड़ी मलीन है, बाहरी स्नान दे नाल भावें तू जिहड़े मर्जी विशेष तौर ते किसी तीरथ नूं मंनदा होवे उत्थे जाके स्नान कीते नहीं साफ हो सकदा। जो भी अंदर की मत साफ हो सकती है वो होगी गुरु की विचार के नाल, गुरु के ज्ञान के नाल। अगली पंक्ति स्वरूप पातशाह कृपा करें, गुरु द्वारे होए सोची पाए सी। गुरु द्वारे पाओ गुरु के दर के उत्ते होए स्वाजी बन के आ, मंगता बन के आ। जो तू गुरु के दर से कुछ निमाणा बन के आवेगा, सतगुरु कृपा करें सोची पाए सी, तेन सोची प्राप्त होगी, विवेक बुद्ध प्राप्त होगी, जिहदे नाल तू अपने जीवन दे विच जेहड़ी मैल है उस दूर कर सकता है। देखो जदों असीं कोई धन गुरु रामदास पासे दा 83 राग विच बचन पढ़ते हैं, उहदे विच गुरु साहिब जी ने कृपा कीती, कहते सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। हुण जिहड़े अपने आप को सेवक अखवा रहे हैं, अपने आप को सिख अखवा रहे हैं, वो सारे आ रहे हैं गुरु की पूजा करने वास्ते, गुरु के दर से आ रहे हैं, सारे हाजरी भर रहे हैं और सारे उत्तम बाणी श्रेष्ठ बाणी को गा भी रहे हैं। सब गावे हर हर उत्तम बाणी, पर गाव्या सुनिया तिनका हर थाई पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करना। पर गाउना ते सुनना उन्हां दा ही परवान है जिन्हां ने गुरु की आज्ञा को सत करके मन लिया, कुछ किंतु परंतु नहीं है। गुरु ने कह दिता वो परवान है, उस मुताबिक जीवन जीना शुरू कर दिता। तेरा गाव्या भी परवान है, तेरा सुनिया भी परवान है, तेरा गुरु के दर ते आया भी परवान है। पर जे तू गुरु की मत ही ना ले, भावें तू पूरा दिन गुरु घर दे विच रहे तां भी तू खाली रह जाए, कुछ भी नहीं हासिल कर सकता। सतगुरु कृपा करें गुरु द्वारा हुए, सब तो पहले तो गुरु के दर से आप मंगता बन के आई, और दूसरी गल कहने ताई तेन सोची प्राप्त हो सकती है। अगली पंक्ति कृपा करते हैं, एक द्वारे धोए अच्छा होए सी। जिन्हों ने गुरु के दर से आके धोया इस भांडे को, उन्होंने का एक पवित्र हो गया। उन्हें धोया किवें जाएगा? बाहरी तौर से कोई गुरु जुक्ति नहीं दसेगा, असल में गुरु की विचार जो तू अपने अंदर लैके जाएगा, उसको अपनी मत के विच वसा लेगा, इवें करके धोया जाएगा। हुण देखो जदों असीं गुरु नानक पातशाह का जीवन पढ़ते हैं, दो तरीके के बंदे गुरु साहिब के कोल आए। एक तो उन्होंने पुत्र ही ने बाबा श्री चंद तिलक जी का, और हर वेले गुरु के अंग संग रहते हैं, पर कोल रह के भी शरीर करके कोल रहे, पर गुरु की नजर तो खाली रहे। पर दूजे पासे भाई नैना जी आए, सेवक बन के आए, गुरु साहिब ने सारियां बख्शिशां उन्होंने कर दी। गुरु के दर से आना है, कभी भी वो बिरती लैके नहीं आए जी बिरती बाबा प्रीति चंद जी लैके रखे। गुरु दर से जो प्रवान होना है, बिरती गुरु अर्जुन पातशाह वाली लेनी पैनी, बिरती गुरु अंगद पातशाह वाली लेनी पैनी है।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਲੇ ਹਰਜੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੰਸ ਹੈ, ਹੰਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਮਤ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਨ को अपने मन का एक भुलेखा दूर कर ले। ये ना सोची कि मैंने आगे जाके जिवें कि ये मैथोलॉजी बनी हुई है, इतिहास बनाया हुआ लोगों ने कि भी इतने जो कर्म करने फिर अगले दिन अपने सानू भोगने पैंदे, जहाँ से जो पीछे करके आया वो असीं हुण भोग रहे हैं। नहीं, सतगुरु कृपा करते हैं मत को जाने जाए अगे पाए सी। ये ना सोची कि मैंने आगे जाके मिलेंगे, आगे जाके मैं चंगे कर्म कर लेंगा, आगे जाके मैं कमा लेंगा। सतगुरु कृपा करते इवें करके नहीं हो सकता, क्योंकि जिहा बीजे सो होने कर्मा संग रखे। जिवें दा तू हुण कर्म करेगा तैनूं उसका फल भी हुणे ही प्राप्त हो जाएगा। ते जेहे कर्म कमाए तेहा होई सी, जिहो जे तू कर्म कमा रहा है उवें दा तू बन जाएगा, उवें दा तेरा किरदार बन जाएगा। और गुरु अंगद पासे जो उसकी श्लोक पढ़ते हैं उहदे विच गुरु अंगद पासे की पढ़ते जो धर्म कमावे इसका धर्म नाम होवे, पाप कमाने पापी जाने। जिहड़ा धर्म दे काम करदा है, भले कर्म करदा है, चंगे कर्म करदा है, उसका नाम भी मेरा ही पै जाता है। हुण देखो आप असीं अपनी सोसाइटी दे विच आले दुआले वेखदे हां, कई बंदियां नूं उन्हां दे कर्म करके जाणिया जांदा है। भावें वो चंगे कर्म करदा है ते चंगे कर्मां दे करके वो जाणिया जांदा है, उन्हां दे नाम भी उस हिसाब दे नाल असीं रखे होए हुंदे ने। जिहड़े माड़े कर्म करदे हां उन्हां दे भी उवें दे ही नाम लैके उन्हां नूं चिंते करदे हां। ते इवें करके सतगुरु कृपा करे जिवें दे तू कर्म कमावेगा उवें दा तेरा सुभाव बन जाएगा। और देखो जदों असीं आसन की बात पढ़ते हैं उहदे विच कृपा करे नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए, फिक्का फिक्को सतिए, फिक्के फिक्की सोए। जिहड़ा मन फिक्का बोलदा है, माड़े बोलदा है, उसका नाम भी उवें दा ही पड़ जाता है, उवें दी उसकी शोभा हो जाती है। उसनूं जाणिया भी उन्हां दे उसदे उवें करके जाता है कि वो बंदा जिहड़ा फिक्का बड़ा बोलदा है, वो क्रोध दे विच बोलदा है, माड़ा बोलदा है, उवें दा उसदा संसार विच उसनूं जाणिया जाता है। सतगुरु कृपा कहते ने अमृत हर का नाम आप वरताए सी। जिहड़ा गुरु दे दर ते आ गया, मंगता बन के आया, निमरता दे विच आया ते उन्हां नूं गुरु दे दर तों प्रभु परमात्मा दा आत्मिक जीवन देण वाला नाम रब की आप बख्शिश कर दिता है। चलिया पद सुन जन्म सवार बाजा बारे सी। जिन्हां नूं एक अमृत नाम प्राप्त हो गया, आत्मिक जीवन देण वाले रब जी दी भक्ति नाम प्राप्त हो गया, वो इस संसार तो इज्जत खट के जाता है। चलिया पद सुन जन्म सवार बाजा बारे सी, उसकी शोभा इस संसार दे विच हुंदी है। पर देखो भाई गुरदास जी जदों असीं पद पढ़ते हैं ते उहदे विच भाई गुरदास जी कहते गुरमुख जन्म सवार दरगाह चले। गुरमुख जिसने गुरु दे सन्मुख होकर अपनी जिंदगी व्यतीत की है, वो इस संसार को अपना जीवन सफल करके गया। गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, सच्ची दरगाह जाए सच्चा पेड़ बने। हुण उसनूं लागी हसूल दे विच थां प्राप्त हो गई, उसने सच दी थां प्राप्त कर लई, हुण जन्म मरण तो मुक्त हो गया। जिसने गुरु दी अनुसारी अपनी कमाई की है, सतगुरु कृपा करते हैं उसकी शोभा इस संसार में हो जाती है ते इस संसार को इज्जत नाल जाता है। फिर कहते मानस क्या बेचारा ते लोग सुनाई सी, कले एक मनुख दी गल नहीं, उसकी शोभा सारे संसार में फैल जाती है। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨੇ ਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਤੋਂ ਪਾਪ प्रसन्नचित हो गया। हे नानक वो मनुख प्रसन्नचित हो गया जिसने गुरु दी मत लैके अपने अंदर दा साफ कर लिया, अपने हृदय को साफ कर लिया, माड़ियां विचारां छड़ दित्तियां, अवगुण छड़ दिते,
सदका सब कुल तारसी उसने अपनी कुलां का भी उधार कर लिया। कुलां किहड़ियां? एक तो संसारिक तौर पर जिहड़ियां कुलां गिणियां जांदियां ने वो कुल हो गई। एक कुल साडे अंदर भी साडे इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय ये भी एक कुल है। इस तो कृपा ने जिसने गुरु की मत हासिल कर ली वो अंदरों प्रसन्न चित हो गया, फिर उसके इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय भी सत्य कमांड पर चल पए, उन्होंने भी उद्धार हो गया, वो भी विकारों तो छुट गए, माड़े क्रम कमांड तो छुट गए। सुना कौन में चंद गुरु नानक पातशाह ने कृपा की है भाई जिन्होंने गुरु के कोलों मत प्राप्त कर ली, गुरु के कोलों विवेक बोध हासिल कर ले, उन्होंने अपने भांडे साफ कर ले, उन्होंने हृदय मनीर जिहड़ा सी वो पवित्र हो गया। हुक्म रज़ा दे विच चलण दी जाच आ गई, जिन्होंने हुक्म रज़ा दे विच चलण दी जाच आ गई वो रब के दर दे उत्ते प्रवान करते हैं, वही भांडे रब नूं पाउंदे ने जिन्होंने रब की रज़ा दे विच जीण दी जाच सीखी है। सतगुरु कृपा करन सारे नूं चढ़ने का बख्शिश करन की, अपने चरणों का प्यार बख्शिश करन, भुलना चूकां दी क्षमा फतेह प्रवान करो। आखिर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।